So the new topic today for discussion is coordination compounds, which is from grade 12th. And in this video, I'm taking up introduction part. That is the little idea about what are coordination compounds, or we call them coordination complexes, and then some important terms which you need to understand before proceeding in coordination compounds. So before starting up this lecture, before this video, start beginning the video, uh, I mean, getting to the theory part of it, I would like to tell that coordination complex or compound, this chapter seems to be little complicated for few of the students that I have personally observed. They find that, there are a lot of terms involved in it. So it is quite tough. But let me tell you, if you remember the basic terms, which are quite simple, as you see a formula of a coordination compound, you will be able to easily remember and recall the terms related to the same. So if you practice a little, it will become easier for you to remember these coordination compounds, the name of the coordination compounds, and various other things that we are going to discuss in chapter. Okay, so let me get started with the introduction part, that is what are coordination compounds. So very simple, as the name suggests, coordination compounds. So these are the compounds in which there is some coordinate bond involved. Now you have read ionic bond, covalent bond, and then there is another type of bond known as covalent bond. Now ionic bond, as you know, is formed by complete transfer of electrons by one atom to another. And covalent bond is formed by sharing of electrons. But the coordinate bond is formed when there is one electron deficient species, and then there is one electron rich species with a lone pair of electrons. So that electron rich species then donates that lone pair of electrons to an electron deficient species. So the coordinate bond is formed, which we represent with an, how do we represent a coordinate bond? We represent with an arrow pointing from donor towards the acceptor. So the coordinate bond is represented like this, donor to acceptor. कि donor ने electrons दिए और acceptor ने electrons लिए. So this is how we represent a coordinate bond. Now coming to what are coordination compounds. So coordination compounds, they are those compounds in which a central atom, an atom or a metal, is linked to number of ions or maybe neutral molecules through covalent bonds. So इसमें जो एक्सेप्टर होगा वो आपका सेंट्रल एटम या आयन होगा जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, एंड जो डोनर होगा वो होगा मे बी एनाइंस or maybe neutral species that will donate a pair of electrons to the central atom or anion, तो neutral molecule. तो coordination compounds क्या होते हैं? Coordination compounds होते हैं those compounds that contain these metal atoms, these deficient, that an ion or a atom which is deficient of electron coordinated to an ion or a neutral molecule through covalent bond. जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझाती हूँ कि जैसे एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है विच इज वेरी सिंपल, जिसको हम बोलते हैं निकल टेट्रा कार्बोनिल. इसमें निकल जो है ये हमारा सेंट्रल एटम है और इससे हमारे जो कार्बन मोनोऑक्साइड हैं ये ऐसे लिंक्ड है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें आपका ये जो है ये सेंट्रल स्पीशीज हो गया हमारा और ये जो हो गया हमारे ये डोनर्स हो गए जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं. यहाँ पे ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के CO के, सो न्यूट्रल हैं. नाउ दीज माइट नॉट बी न्यूट्रल, ये एनाइनिक भी होते हैं. दीज आर नॉट कैटायंस ऑब्वियसली बिकॉज कैटायन कहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा. तो दीज आर ईदर न्यूट्रल विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स or they may be anionic like cyanide, ये भी हो सकता है.
ठीक है, सो दे मे बी एनाइनिक और दे मे बी न्यूट्रल। सो बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये ऐसा कुछ होता है कि हमारा एक सेंट्रल मेटल एटम जो है या आयन, वो ऐसे होता है कि उसके चारों तरफ, उसके नॉट चारों, उसके कई तरफ से हो सकते हैं डोनर मॉलिक्यूल्स और आयंस जो इलेक्ट्रॉन्स देंगे उसको, एंड दिस बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसीलिए इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल, जैसे ये है K4FeCN6, ये जो मैंने ब्रैकेट में पार्ट लिखा, यही आपका मेन पार्ट है इसके अंदर, बिकॉज ये जो पार्ट है इसी में आपका सेंट्रल जो आयन है वो है, और यहाँ पे बाकी जो हैं, आई ड्रॉ इट ऑन द नेक्स्ट पेज, K4 पोटाशियम फेरोसाइनाइड जिसको बोलते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में, जबकि इसका आईयूपीएसी में डिफरेंट नेम है, जिसकी नेमिंग भी हम करेंगे लेटर ऑन इन द अपकमिंग वीडियोस। सो दिस इज व्हाट, इसमें क्या है आपको जो मैं बताई थी, कौन सा पार्ट है जो कोऑर्डिनेटेड वाला पार्ट है, वो ये है जिसमें आपके साइनाइड आयन जो है वो डोनर है, 6 साइनाइड आयंस, दे आर डोनर, एंड आपका जो आयरन जिसमें फेरस है जो Fe2+ बीच में जो है, ये आपका एक्सेप्टर है। सो दिस इज वन अनदर एग्जांपल ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब होता क्या है, जो ये स्पीशीज बनता है, जो ये स्पीशीज बनता है जो मैंने बनाया, ये मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है, बट इस पे 4 नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखेंगे ऑल इन ऑल ये पूरा जो मैंने कंपाउंड बनाया ये न्यूट्रल है। सो न्यूट्रल कैसे हुआ ये, कि जो बाहर पार्ट है पोटाशियम, पोटाशियम की वैलेंसी होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 1, सो 4 पोटाशियम पे +4 चार्ज होगा। सो ये जो पूरा ब्रैकेट वाला पार्ट है, इस ब्रैकेट वाले पार्ट पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा, तो अगर यहाँ +4 है तो यहाँ 4 नेगेटिव होगा। सो दिस पार्ट जो ये हमारा ब्रैकेट में होता है, दिस मे बी न्यूट्रल, दिस मे बी एनाइनिक, दिस मे बी कैटाइनिक। ये हम करेंगे टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जिसमें हमारे न्यूट्रल होंगे, आयनिक एनाइनिक होंगे, कैटाइनिक होंगे। यहाँ पे ये एनाइनिक है, जो मैंने पीछे कराया था ये न्यूट्रल था, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। दिस वाज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, इनको हम कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ये जो मैंने ड्रॉ किया इनको हम कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं, जिसमें हमारा सेंट्रल जो मेटल है वो डिफरेंट स्पीशीज आयन से या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से लिंक्ड होता है। इनको हम कॉम्प्लेक्स आयंस बोलते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और जो हमारा कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है वो न्यूट्रल भी हो सकता है। इसीलिए हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। मैं एक पॉजिटिव का एग्जांपल देना चाहती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी गिव एन एग्जांपल विद द पॉजिटिव। ये है कॉपर टेट्रामीन कॉपर सल्फेट। ये इसमें हम देखेंगे सल्फेट जो होता है जो बाहर है ब्रैकेट से, वो हमारा एनाइनिक पार्ट है, बिकॉज सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है। बिकॉज सल्फेट हैज 2 नेगेटिव चार्ज, तो हमारा जो ये ब्रैकेट वाला पार्ट है इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। ये हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है, ये हमारा कैटायन है। यहाँ पे यू कैन सी दिस इज नाउ कैटायनिक। तो मतलब जो ब्रैकेट वाला पार्ट है जिसमें मेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं जो हमें क्लियरली दिख रहे हैं, सो ये पार्ट मे बी कैटायनिक, मे बी एनायनिक, एंड मे बी न्यूट्रल। हम इस तरह से इनको टाइप्स में भी मतलब डिवाइड करते हैं, दैट न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस और कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। तो मैंने एक आपको टर्म जो है बता दी है कि कॉम्प्लेक्सेस की टाइप्स हो गई है। तो ये हमारे होते हैं इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब आपने इनकी डायग्राम्स को या इनकी जो भी ज्योमेट्री मैंने बनाई है, जो भी मैंने स्ट्रक्चर बनाए या फॉर्मूलाज बनाए, इनको देख के देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। As you practice, you will learn all of them, so they become so easier for you. So I have told you 3 types of complexes: neutral, cationic and anionic। मतलब जिसमें हमारा जो कॉम्प्लेक्स, देखो ओवरऑल मॉलिक्यूल तो आपका न्यूट्रल ही रहेगा, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, लेकिन जो हमारा पार्ट जिसमें हमारा मेन कॉम्प्लेक्स, जिसमें हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बने हैं, वो कैटायनिक, एनायनिक या न्यूट्रल हो सकता है। सो ऑर्गेनिक सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होंगे? सो दीज आर द कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम इज लिंक्ड टू अ नंबर ऑफ आयंस or neutral molecules by coordinate bonds, that is
व्हाट डज इट मीन? बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय दीज आयंस, जैसे यहाँ पे साइनाइड आयन है, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पे ओके मैंने यहाँ पे गलत बना दिया, अमोनिया आएगा। सो यहाँ पे न्यूट्रल है अमोनिया, मतलब जो डोनर है वो न्यूट्रल स्पीशीज भी हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अब मैं कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रही हूँ, अब मैं डोनर की बात कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे अमोनिया जो है हमारा डोनर है वो न्यूट्रल है, कार्बोनिल जो था वो डोनर था वो न्यूट्रल है। सो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। सो लेट अस टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स, थोड़े से और करा देती हूँ। जैसे कि आपका हो गया ये सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, अगेन दिस इज नॉट एन आईयूपीएसी नेम, ये इसमें आपका ये वाला पार्ट एनाइनिक है, ये वाला पार्ट केटाइनिक है, ठीक है। सो देयर में बी दे कैन बी न्यूट्रल ऑल्सो। मैं और एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे ये है ये वाला, अब ये न्यूट्रल है, दिस इज न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए, और हम आगे चलेंगे तो वी विल टेक अप मोर एग्जांपल्स। चलिए अब आगे चलने से पहले लेट अस फर्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन a double salt and a coordination compound, which is very important. डबल सॉल्ट्स आपने सुने होंगे, पहले भी पढ़े हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट है। डबल सॉल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या होता है? सो डबल सॉल्ट के बहुत सारे एग्जांपल हैं, आई विल टेक अप टू। सो फर्स्ट है, जैसे मैं ले लेती हूँ मूहर सॉल्ट, या सबसे कॉमन है पोटाश एलम, पोटाश एलम विच इज पोटाशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट 24H2O, या फिर हमारा एक है मोहर सॉल्ट विच इज FeSO4, मतलब फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट 6H2। ये हैं हमारे डबल सॉल्ट्स। और हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था पोटाशियम फेरोसाइनाइड का, या फिर अभी मैंने लिया था सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड का, ये एग्जांपल लिए थे, ये होते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। अब इनमें डिफरेंस क्या है? वन वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन टू इज कि अगर हम डबल सॉल्ट्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। मतलब पोटाशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, जो ये वाला पोटाशियम है, इसको जब पानी में डालेंगे, पोटाशियम आयन, सल्फेट आयन, एल्यूमिनियम आयन, सल्फेट आयन, ये सारा पूरे के पूरा एंटायर जो एंटिटी है ये पूरी की पूरी डिसोशिएट हो जाएगी इनटू इट्स आयंस। इन द सेम वे ये मोहर सॉल्ट भी फेरस आयन बनेंगे, सल्फेट आयंस बनेंगे, अमोनियम आयन बनेंगे। बट if you dissolve coordination compounds in water, they won't completely dissociate into पूरे आयंस। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको पोटाशियम आयन भी मिले, फेरस आयन भी मिले, साइनाइड आयन भी मिले, ओनली केटाइनिक पार्ट, एनाइनिक पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स अलग हो जाएगा। मतलब यहाँ से पोटाशियम आयन अलग हो जाएगा और ये नेगेटिव पार्ट ये अलग हो जाएगा, सोडियम आयन अलग हो जाएगा और ये पार्ट अलग हो जाएगा। ओके, सो लेट मी शो यू पोटाशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, जैसे ये है, दिस इज अ डबल सॉल्ट। जब इसको वाटर में डालोगे तो इसमें जैसे दिख रहे हैं 2 पोटाशियम आयंस, ऑल इन ऑल 4 सल्फेट आयंस प्लस 2 एल्यूमिनियम आयंस, और जो वाटर है ऑब्वियसली वो वाटर में चला जाएगा। तो ये कंप्लीट डिसोसिएशन है। जबकि अगर आप करोगे अपने इसकी डिसोसिएशन, जस्ट अ सेकेंड, अगर आप करोगे अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, मतलब इसको चाहोगे डिसोशिएट करना वाटर में, तो यहां से मिलेंगे पोटाशियम आयन एंड फेरोसाइनाइड आयन, ये मिलेंगे आपको ऑन डिसोसिएशन। मतलब फेरोसाइनाइड फर्दर फेरस और साइनाइड आयन में डिसोशिएट नहीं होगा। ये सभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के साथ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ होता है। सो अगर हम मेन डिफरेंसेस करें, एक तो ये आ गया। अदर देन दैट, जो हमारे डबल सॉल्ट्स होते हैं, दे यूजुअली कंटेन 2 सिंपल सॉल्ट्स इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। ये जो सॉल्ट्स हैं ये इक्विमोलर, मतलब अगर 1 मोल इसका है तो 1 मोल इसका होता है। आप देख सकते हैं 1 मोल इसका है तो 1 मोल ही अमोनियम सल्फेट का है, इसका होता है। लेकिन
ये जिनसे बनते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिन भी सॉल्ट से जब मिक्स करके बनाए जाते हैं, सो दे मे नॉट बी यूज्ड अप इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात कर रही हूँ, सो उसमें इक्विमोलर प्रोपोर्शन जैसा कुछ नहीं होता, जबकि डबल सॉल्ट्स बनते हैं इक्विमोलर प्रोपोर्शन में मिक्सिंग में सॉल्ट्स के होने से। देन जो हमारे डबल सॉल्ट्स हैं वो सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। सॉल्ट जो हम सॉल्ट बोलते हैं जिनको डबल सॉल्ट, जैसे पोटाश, एलम, मोर सॉल्ट एंड एक्वस सॉल्यूशन, जैसे मैंने बताया, ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं इनटू देयर आयंस। नाउ कमिंग टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशन आल्सो। ठीक है, because why so? Because in solution also they do not dissociate completely, so they are there in the solution in the aqueous part form also. Okay, then जो हमारे पोटाश एलम हो गए, यानी कि हमारे डबल सॉल्ट हो गए, ये आयनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है। एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, दे मे और मे नॉट बी आयनिक, जरूरी नहीं है सबके सब आयनिक हो। ठीक है, जैसे हमने भी पीछे भी किए थे, न्यूट्रल भी किए थे हमने यहाँ पे ये। So they may or may not be ionic, but they do contain coordinate bond. यहाँ पे जैसे साइनाइड का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहाँ पे हमारा अमोनिया और क्लोरीन का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कोबाल्ट के साथ. So they may or may not be ionic, but they do contain a coordinate bond. Other than that, जो properties होती हैं डबल सॉल्ट्स की, they are same एज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड। जिन भी कंपाउंड्स हैं वो बनते हैं उनकी सेम होती है, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जब बनाए जाते हैं तो जिनसे वो बनते हैं, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से वो बनाए जाते हैं, उनसे उनकी प्रॉपर्टीज आर एंटायरली डिफरेंट। ठीक है, और हो गया हमारा मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हमारे ये हो गए बिटवीन डबल सॉल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. Now coming to the important terms that we study when we study coordination compounds. चलिए important terms कर लेते हैं. Important terms related to coordination compounds. देखिए बुक्स में बहुत सारी टर्म्स दे रखी है. मैं मेन क्लासिफिकेशन के अंडर ही आपको बहुत सारी टर्म्स करा दूंगी. मैं उनको मतलब 10-11 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रही हूँ टर्म्स को. सो मैं एक टर्म के अंदर ही बहुत सारी टर्म्स एक्सप्लेन कर दूंगी. सो फर्स्ट अगर मैं बात करूं, फर्स्ट इज लिगेंड्स, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. आई थिंक दिस पेन इज नॉट वर्किंग हियर. लिगेंड्स, ठीक है, लिगेंड्स एंड उसमें आ जाता है एक टर्म और, दैट इज सेंट्रल मेटल एटम. मैंने अभी यूज भी किया ये वर्ड, और आयन. ठीक है, मैं इसी के अंडर समझा दूं कि क्या होता है. और लिगेंड्स के अंडर ही हम पढ़ेंगे टर्म्स लाइक डेंटिसिटी, ठीक है, चिलेशन, चिलेट्स, चिलेट रिंग. कोई भी टर्म डरने वाली नहीं है, बहुत इजी है. एंड हम पढ़ेंगे इसमें एम्बी डेंटेट लिगेंड्स. ये सारी टर्म्स मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर करा दूंगी. ठीक है, सेकंड टर्म हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर. थर्ड हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तो हो सकता है किसी किसी बुक में कोई और टर्म हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए, कई बार कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोल देते हैं. ठीक है, देन आई विल टेक अप कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन. वेरी सिंपल नाम जो भी हो, अंदर से जो टर्म्स उनके मीनिंग बहुत इजी हैं. एंड देन वी विल अंडरस्टैंड द ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं. उसके बाद चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन या चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन भी हम पढ़ते हैं. नो, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन बोल दो इसको, या इसको बोल देते हैं चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन. इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ.
और चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। देन आई गेस हम पढ़ेंगे कौन सा टर्म था ये, यस। इसके बाद हम, मैंने बता भी दिए वैसे ये, फिर भी मैं लिख देती हूँ, कैटाइनिक, एनाइनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। हम ये पढ़ेंगे। एंड इसके बाद दो तरह के और कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये भी बहुत सिंपल हैं। जैसे तो मैं यूज करूंगी मैं तब भी बता दूंगी, अगर मैंने इससे पहले यूज किया होमोलिप्टिक कॉम एंड हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अगेन वेरी इजी वन, द नेम इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तो ये हम टर्म्स पढ़ेंगे जो मैं अभी आपको वन बाय वन कराने वाली हूं। सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म, that is ligands. What are ligands? See, जो हमारा, मैंने अभी बताया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनता है, एक डोनर होता है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन स्पीशीज होता है। लिगेंड्स जो होते हैं वो डोनर वाले पार्ट को हम लिगेंड बोलते हैं। अब वो डोनर न्यूट्रल हो सकता है या वो एनाइनिक पार्ट, एनायन हो सकता है। सो बेसिकली डोनर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एटम भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हम अभी क्लोरीन क्लोराइड करेंगे, एनायन हो गया, सॉरी वो। सो इट मे बी, इट इज मेनली मॉलिक्यूलर और आयनिक, या वो मॉलिक्यूलर होता है जैसे अमोनिया, जैसे वाटर, या फिर वो एनाइनिक होता है जैसे क्लोराइड आयन, जैसे साइनाइड आयन, जैसे ऑक्साइड आयन, ये सब। सो जो डोनर अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है टू द मेटल एटम या आयन एंड फॉर्म्स अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट इज नोन एज योर लीगेंड। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि बेसिकली लीगेंड कौन है? देने वाला, डोनर। जैसे मैंने निकल टेट्रा कार्बोनिल लिया था, तो ये क्या है मेरा? दिस इज लीगेंड। एक एग्जांपल मैंने ये लिया था पोटाशियम फेरोसाइनाइड का, इसमें जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो कौन सा है? ये वाला पार्ट है। इसमें डोनर कौन सा है? साइनाइड आयन। सो दिस इज व्हाट, दिस इज माय लीगेंड। कितने लीगेंड है ऊपर? 4। इधर कितने हैं साइनाइड आयन? 6। सो लीगेंड कितने भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन अवर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देन एक मैंने एग्जांपल लिया था सोडियम, ये अर्जेंटो साइनाइड का, इसमें लीगेंड अगेन यहाँ पे हमारा साइनाइड आयन है। सो दिस इज नोन एज लीगेंड। नाउ व्हाट इज, इसके साथ मैंने बताया था मैं कुछ और भी लेने वाली हूँ, सेंट्रल मेटल एटम एंड सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। सो ये हमारा, ये सेंट्रल मेटल है। ये हमारा, देखिए पोटेशियम भी मेटल, लेकिन कॉम्प्लेक्स में जो पड़ा है दैट इज योर सेंट्रल मेटल आयन। ये जो है दिस इज योर सेंट्रल मेटल आयन। ओके, सो ये हमारे हैं क्या बोलते हैं, लीगेंड्स एंड योर सेंट्रल मेटल आयन और सेंट्रल मेटल। अच्छा, अब आ जाते हैं हम डेंटिसिटी वर्ड पे। व्हाट इज डेंटिसिटी? डेंटिसिटी इज दैट ऑफ अ लीगेंड। सो डेंटिसिटी होती है लीगेंड की, ये टर्म हम लीगेंड के लिए यूज करते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय डेंटिसिटी ऑफ लीगेंड? सी, जो आपका लीगेंड होता है, मैंने अभी जितने एग्जांपल लिए हैं मैंने इसे बिल्कुल सिंपल लीगेंड्स लिए हैं, जैसे मैंने अमोनिया लिया, जैसे मैंने साइनाइड लिया, या मैंने कार्बोनिल लिया। तो ये बहुत सिंपल आपके जो हैं लीगेंड्स हैं। नाउ देयर आर सर्टेन लीगेंड्स जिनके अंदर एक से ज्यादा डोनर पार्ट होता है। सो उस पे बेस डेंटिसिटी हो जाती है लीगेंड की। मतलब डेंटिसिटी ऑफ लीगेंड मतलब कहने का मतलब है कितने दांत हैं उसके देने के लिए। तो जैसे अभी हमने किया था
साइनाइड आयन ये मोनो और यूनिडेंटेट है, इसमें सिर्फ एक ही डोनर पार्ट है, मतलब देयर इज ओनली वन डोनर। ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सो देयर इज ओनली वन टूथ, यानी कि सिर्फ साइनाइड ही डोनर है यहाँ पे। साइनाइड मतलब एक ही डोनर है, साइनाइड में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर है डोनेट करने के लिए। ठीक है, वाटर, इसमें जो है सिर्फ ऑक्सीजन के लोन पेयर, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर है डोनेट करने के लिए। एमोनिया, इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर है डोनेट करने के लिए। सो ऐसे लिगेंड्स को हम बोलते हैं मोनो डेंटेट और यूनिडेंटेट लिगेंड। मोनो मतलब डेंटेट, मोनो डेंटेट मतलब वन टूथ लिगेंड। जब मैं आपको बाइडेंटेट कराऊंगी आपको और क्लियर हो जाएगा व्हाट इज डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। नाउ देयर कैन बी टू डोनर प्लेसेस एक ही मॉलिक्यूल में, मतलब एक लोन पेयर एक जगह से आ रहा है, दूसरा लोन पेयर दूसरी जगह से आ रहा है, ऐसे को बोलते हैं हम डाइडेंटेट। और कई कई बुक्स में बाइडेंटेट भी लिखा हुआ है। डाइडेंटेट लिगेंड्स जैसे कि इथाइलिन डायमीन, CH2NH2 CH2NH2, ये वाले नाइट्रोजन पे एक है, इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है। सो दो डोनर साइड्स हो गई, सो दो दांत हो गए इसके, डाइडेंटेट। ऑक्सिलेटाइन जो ऑक्सैलिक एसिड से बनता है, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, टू डोनर साइड्स, सो डाइडेंटेट लिगेंड्स। बेस्ड ऑन दैट डेंटिसिटी जो होती है लिगेंड की वो 3, 4, 5, 6 हो सकती है। लिगेंड कैन बी अ पॉलीडेंटेट, मतलब विद इन द सेम लिगेंड, सेम मॉलिक्यूल, सेम आयन, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी होना in a molecule or in an ion is known as denticity of that ligand. ये हो गया डाइडेंटेट जो 3 डोनेट कर सकता है एक ही मॉलिक्यूल। ये चीज का ध्यान रखना, बच्चे कई बार इससे कंफ्यूज कर लेते हैं कि यहाँ पे तो 4 कार्बोनिल है तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहे हैं, यहाँ पे 6 साइनाइड है तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहे हैं, 2 साइनाइड है 2 डोनेट हो रहे हैं। सी विद इन ईच आयन और मॉलिक्यूल, ईच लिगेंड कितनी कैपेसिटी है, एक कार्बोनिल तो एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है, एक साइनाइड एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है। लेकिन जो मैंने अभी एग्जांपल लिया इथाइलिन डायमीन का, ये वाला, या मैंने ऑक्सलेट का, इसका एक मॉलिक्यूल ही 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, ऐसे वालों को हम बोलते हैं डाइडेंटेट। इसका एक ही 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। नाउ टर्डेंटेट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बट नीड नॉट वरी, ठीक है, मैं और इतना यूज नहीं होगा वैसे टर्डेंटेट टेट्राडेंटेट, बट स्टिल मैं एक्सप्लेन करने के लिए लिख रही हूँ। सो आई एम राइटिंग द एग्जाम्पल। ये देखिए एक थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा, CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। देखिए यहाँ से भी लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, सो 3 साइड्स हो गई एक ही मॉलिक्यूल में। एंड इस मॉलिक्यूल का क्या नाम है, इसका नाम है N2 एमिनो इथाइल 1 2 इथाइल। जब एमीन्स पढ़ते हैं ना हम तो उसमें ये नेमिंग क्लियर हो जाती है, इथेन डायमीन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में, जब हम इस लिगेंड का नाम लिखते हैं ना, इसको जब हम यूज करते हैं, इतना बड़ा लिगेंड तो हम नहीं लिख सकते अपने कॉम्प्लेक्स में, इतना बड़ा मॉलिक्यूल कैसे लिखेंगे, तो इनके लिए शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, DIEN यूज होता है ब्रैकेट डाल के। इथाइलिन डायमीन के लिए EN यूज होता है, तो आपके कॉम्प्लेक्स में अगर EN यूज हुआ इसका मतलब ये वाला लिगेंड है, अगर DIEN यूज हुआ इसका मतलब ये लिगेंड है। तो दिस इज अ टर्डेंटेट लिगेंड, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द लिगेंड। ठीक है, अब एग्जाम्पल करते हैं हम टेट्राडेंटेट का, अगेन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एग्जाम्पल। टेट्राडेंटेट
डेंटेट लिगेंड। ये हो गया हमारा NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। सो एक ये लोन पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। सो 1 2 3 4 सेम मॉलिक्यूल में चार डोनर साइट्स हो गई। एंड इसका नाम है NN डैश bis डैश 2 amino ethyl dash 1 2 इथेन डायमीन। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है एंड ये आपको विद प्रैक्टिस सब याद हो जाएगा जब आप करेंगे। तो इतना बड़ा हमें लिखना भी नहीं होता फॉर्मूला, कभी भी हमें इसका छोटे वाला फॉर्म लिखना होता है। सो विद प्रैक्टिस आपको ये बहुत इजीली जो है ना याद हो जाएगा। इसके लिए हम यूज करते हैं स्मॉल, जो बताइए ना, वो करते हैं TRIEN, ट्राइन ब्रैकेट में। मैं एग्जांपल के साथ आपको जब कराऊंगी तो मैं करवा दूंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कराती हूँ तो मैं राइट द नेम ऑफ इट इन द, मैं कॉम्प्लेक्स में इसको लिखूंगी तो आपको समझ आ जाएगा। फिर मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ हेक्साडेंटेट का, जो बहुत कॉमनली यूज लिगेंड है। हेक्साडेंटेट 6 डोनर साइट्स, ये है इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ये EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। दिस इज N CH2 CH2 N CH2 COO नेगेटिव CH2 COO नेगेटिव CH2 COO नेगेटिव CH2 COO नेगेटिव। कितनी डोनर साइट्स होगी? ये हो गई 1 2 3 4 5 6। सो 6 डोनर साइट्स हो गई। सो इस तरह से हमारी लिगेंड्स की डेंटिसिटी डिस्क्राइब की जाती है। अब हम आ जाते हैं अपने, मैं विद एग्जाम्पल मैं ये एक बार ड्रॉ करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे हम मोनो डेंटेट लिगेंड को एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में दिखाते हैं। तो जैसे बहुत सिंपल है, मैंने ये लिया था कि 4 बार मैंने एग्जाम्पल लिया है इसका, ठीक है। तो मैं सिर्फ कॉम्प्लेक्स पार्ट दिखा रही हूँ। तो Fe CN 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 इस तरफ CN 4 नेगेटिव। तो ये मोनोडेंटेट हो गया, क्योंकि इस पर्टिकुलर हर एक इंडिविजुअल CN में एक ही डोनर इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ मोनोडेंटेट लिगेंड। अब मैं डाइडेंटेट को रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ किसी कॉम्प्लेक्स में। जस्ट अ सेकेंड। तो एग्जांपल ले लेते हैं ये प्लेटिनम, ये वाला। मैंने डाइडेंटेट का एग्जांपल इथाइलिन डायमीन लिया था, ऑक्सिलेट भी लिया था, पर मैं यहाँ पे इसके साथ ले रही हूँ CH2 CH2 NH2। ठीक है, अब इसको मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। अगर आप देखें, दिस इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, जिसमें कोई कैटायनिक एनायनिक पार्ट नहीं है। सो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये। इसमें मैं इथाइलिन डायमीन को कैसे दिखा रही हूँ, जरा ध्यान से देखिए। NH2 NH2, ठीक है ये, और आपका जो ये पार्ट है CH2 CH2। तो देखो एक सॉर्ट ऑफ रिंग बन रही है। कैन यू सी दिस रिंग? एक रिंग इज फॉर्म व्हेन यू आर यूजिंग अ बाइडेंटेट लिगेंड। एक रिंग बन गई है। ट्राई में, टेट्रा में ऐसे रिंग्स बनती जाती हैं। ठीक है, अब मैं एग्जांपल दे देती हूँ टरडेंटेट का। इट इज नॉट कॉल्ड ट्राई, इट इज कॉल्ड टरडेंटेट। तो ये मैंने एग्जांपल जो पहले लिया था, मैं उसको अब लिख रही हूँ यहाँ पे PT
ये प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, मैंने आपको याद है डाई ऐसे लिखा था, ये जो था टरडेंटेट लिगेंड था। मैंने इसको बताया था आपको, इसको डाई इन लिखेंगे हम ब्रैकेट में, क्योंकि इतना बड़ा लिखना लिगेंड पॉसिबल नहीं होता कॉम्प्लेक्स पार्ट में, तो हम ऐसे लिखते हैं। तो दिस इज द कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इसको मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। एक क्लोरीन है और बाकी क्या है, बाकी डाईइन है, ये टरडेंटेट है, यानी कि इसकी 3 कोऑर्डिनेटिंग साइड्स होंगी। तो एक यहां से आएगी, एक इधर होगी और एक इधर होगी। अब इसी के राउंड में पूरा लीगेंड जो है बिल्ड कर दूंगी। ये था मेरा लीगेंड NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2, ये था। यानी मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने इस पर्टिकुलर लीगेंड में 3 डोनेटिंग साइड दिखाई थी, N N N, वही बन गई। अगेन एक रिंग फॉर्म होगी, 2 रिंग्स फॉर्म होगी रादर इसके अंदर। ठीक है, अब मैं टेट्रा डेंटेट को ड्रॉ करके दिखाती हूँ। और मैं कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल ले रही हूँ, ये भी कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है। दिस इज ऑल्सो अ कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या है, ये है हमारा टेट्राडेंटेट, यानी कि 4 साइड्स होंगी, डोनर साइड्स। सो एक इधर से आएगी, एक इधर से आएगी, एक यहाँ, एक यहाँ। अमीन नाइट्रोजन तो होगा ही होगा, तो अगर आपको वो याद हो तो वो ये था स्ट्रक्चर, NH NH CH2 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 NH2, और यहाँ पे था ये NH2 CH2 CH2। देखो 4 साइड होगी, 1 2 3 4, 4 lone pairs in a single molecule of this particular ligand which is a tetradentate ligand. So ये हो गए हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ligands। अब आ जाती है टर्म जो मैंने यूज की थी, चिलेट, चिलेट कॉम्प्लेक्सेस, चिलेट रिंग। आप देख रहे हैं कि बाइडेंटेट लीगेंड से अगर मैं शुरू करती हूँ, डाइडेंटेट लीगेंड की बात करती हूँ, तो इसमें रिंग बन रही है। सिमिलरली ट्राइडेंटेट, टर्डेंटेट में भी रिंग बन रही है, टेट्राडेंटेट में भी रिंग बन रही है। सो जो ये रिंग्स हैं, इनको बोला जाता है चिलेट रिंग्स। दीज आर कॉल्ड चिलेट रिंग्स। इस प्रॉपर्टी को ऑफ अ लीगेंड, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लीगेंड, सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज चिलेशन। So it is not that chill, CHILL wala chilate, chill. So it is chilation, CHELATION, chilation. This property is known as chilation. Property of a ligand to form a ring while coordinating with the central atom or ion is known as chilation. And these rings are known as chilate rings. And these complexes are known as metal chilates. इनको बोला जाता है metal चिलेट्स, या ओनली चिलेट्स भी बोलते हैं हम इनको, मेटल चिलेट्स। ये जो कॉम्प्लेक्सेस इस तरह के होते हैं जिनमें ऐसी रिंग्स बनते हैं, वो कहा जाता है मेटल चिलेट्स। अब इनकी मैं इंपॉर्टेंस बताती हूँ चिलेट्स की। चिलेट्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, सो अब हम क्या करने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिलेट या प्रॉपर्टीज ऑफ चिलेट। चिलेट से क्या फर्क पड़ता है, या चिलेट रिंग से क्या फर्क पड़ता है? सी चिलेट्स लिगेंड जो होते हैं ना, दे आर मोर स्टेबल, यू नो, जो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं वो, दे आर मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस देन दी मोनोडेंटेट वंस। मतलब जो कॉम्प्लेक्स एक मोनोडेंटेट लिगेंड बनाता है और जो कॉम्प्लेक्स एक बाय या टर या टेट्रा, यानी कि जिसके अटैच होने से चिलेट रिंग बन जाए, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस आर फार मोर स्टेबल देन दी मोनोडेंटेट वंस। ओके, इसके अलावा एक प्रॉब्लम और है चिलेट्स के साथ, एक प्रॉब्लम है चिलेट्स के साथ। ये तो इनकी अच्छी बात हो गई, तो इनकी पॉजिटिव बात हो गई कि दे फॉर्म द स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। बट द थिंग इज, अगर आपका जो लिगेंड है जो चिलेट बना रहा है उसमें बहुत ही कुछ कॉम्प्लेक्स पार्ट्स हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं,
देन स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से कई बार कॉम्प्लेक्स आपका अनस्टेबल भी हो जाता है. So that is these are few characteristic of चिलेट्स या चिलेट रिंग्स. अब चिलेट रिंग्स को इंडस्ट्रीज में इनकी इंपॉर्टेंस भी होती है. इंपॉर्टेंस ये सब बुक में लिस्टेड है, मैं जस्ट इलैबोरेट कर रही हूँ. इंपॉर्टेंस ऑफ चिलेट्स. चिलेट्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेशली लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड्स की सेपरेशन में यूज होते हैं चिलेट रिंग्स. ठीक है, तो ये हम डिटेल में जो है अभी नहीं पढ़ेंगे, बट ये एक इनकी इंपॉर्टेंस है. देन क्वालिटेटिव एनालिसिस जब हम करते हैं, जब इसको हम सॉल्ट एनालिसिस भी बोलते हैं, सॉल्ट डिटेक्शन करते हैं जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहां पे भी चिलेट रिंग फॉर्मेशन की वजह से सेपरेशन ऑफ योर सॉल्ट्स वो भी की जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ चिलेट्स बाय सम आयंस बट नॉट बाय सम अदर आयंस. ठीक है, तो वो यूजेस है. डिटेक्शन ऑफ मेटल्स किए जाते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में, वहां पे इनका यूज है. ठीक है, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में भी चिलेट रिंग्स का यूज है. देन ऐसे मैंने बोला, जैसे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस दोनों में ही, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दोनों पार्ट्स में ही जो है चिलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी दैट इन डिटेल, बट इवेंचुअली यू विल लर्न एज यू प्रोसीड इन केमिस्ट्री कि कैसे हम चिलेट इफेक्ट को या चिलेट रिंग फॉर्मेशन को यूज करते हैं इन आर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बट एज ऑफ नाउ आप सिर्फ याद कर लीजिए ये सब चीजें. अब मैंने एक वर्ड यूज किया था एम्बीडेंटेट लीगेंड. जब मैंने बताया मैं ये कराऊंगी टर्म, तो मैंने एक वर्ड यूज किया था एम्बीडेंटेट लीगेंड. ओके, सो एम्बिडेंट ग्रुप एक वर्ड होता है. एम्बिडेंट मतलब जिसके विद इन द मॉलिक्यूल दो अटैचिंग साइट हो. देखो अभी डेंटिसिटी कही, डेंटिसिटी हो गया, विद इन द मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स डोनेट कर सकते हैं कोई, वो उसकी डेंटिसिटी है लीगेंड की. देन एम्बिडेंटेट या एम्बिडेंट ग्रुप्स क्या होते हैं कि एक ही लीगेंड है, डोनेट वो लोन पेयर ही एक ही लोन पेयर कर रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर कर रहा है, बट उसकी दो अटैचिंग साइट्स हो जाती हैं. जैसे एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है NO2. इसमें नाइट्रोजन भी अटैचिंग साइट हो सकती है और ऑक्सीजन भी हो सकती है. मतलब आपका जो सेंट्रल एटम है उससे आपका नाइट्रोजन भी अटैच हो सकता है, ऑक्सीजन भी अटैच हो सकता है. अगर नाइट्रोजन अटैच होगा, ठीक है, अगर आपका नाइट्रोजन अटैच होता है तो उसको हम नाइट्रो बोलते हैं, क्योंकि लीगेंड का नाम चेंज हो जाता है. ये आप अभी जब नेमिंग करेंगे उसमें, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, यू विल स्टडी द नेमिंग ऑफ लीगेंड्स. सो जब नाइट्रो में एन पार्ट अटैच है टुवर्ड्स द सेंट्रल एटम तो इट इज कॉल्ड नाइट्रो. जब ऑक्सीजन पार्ट अटैच है इट इज कॉल्ड नाइट्रिटो. तो डिपेंड करता है कौन सा पार्ट अटैच है. ठीक है, कौन सा पार्ट अटैच है उस पर डिपेंड करता है. अगर ये अटैच्ड है दिस इज कॉल्ड नाइट्रिटो, एंड अगर ये पार्ट अटैच्ड है आपका सेंट्रल मेटल एटम से दिस इज कॉल्ड नाइट्रो. इन द सेम वे SCN नेगेटिव, अगर सल्फर पार्ट अटैच्ड है तो इट इज नोन एज थायोसाइनेटो. लीगेंड का नाम बन जाता है थायोसाइनेटो. और अगर नाइट्रोजन अटैच्ड है दिस इज नोन एज आइसोथायोसाइनेटो. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपका लीगेंड का नाम बदल जाएगा और ऐसे लीगेंड्स को हम बोलते हैं एम्बिडेंटेट लीगेंड्स, या इनको एम्बिडेंट ग्रुप्स भी बोलते हैं. जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं हम उसमें अल्काइल हैलाइड्स में पढ़ते हैं एम्बिडेंट ग्रुप्स, कि आप एक पर्टिकुलर अल्काइल हैलाइड में अगर सिल्वर साइनाइड डाल रहे हो तो क्या बनता है, पोटेशियम साइनाइड डाल रहे हो, उसमें हम पढ़ते हैं कि साइनाइड जो है वो एक एम्बिडेंट ग्रुप है. पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कुड बी नाइट्रोजन, कुड बी कार्बन, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा कंपाउंड यूज कर रहे हो, AgCN यूज कर रहे हो या KCN यूज कर रहे हो, वहां हम पढ़ते हैं एम्बिडेंट ग्रुप्स. और वो एम्बिडेंट लीगेंड जो है, एम्बिडेंटेट लीगेंड, वो वही मतलब वो सेम चीज की हैविंग मोर देन वन अटैचिंग साइट विद इन अ मॉलिक्यूल, दैट इज नोन एज एम्बिडेंट थिंग, एंड इसको बोलते हैं हम एम्बिडेंटेट लीगेंड्स. तो ये हो गए हमारे जी फर्स्ट जो था टॉपिक कवर हो गया हमारा. फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जिसमें हमने लीगेंड्स कर लिया, सेंट्रल मेटल आयन कर लिया, हमने कर लिया लीगेंड्स क्या क्या होते हैं, डेंटिसिटी कर ली, चिलेट रिंग्स कर लिए, एम्बिडेंटेट लीगेंड कर लिए.
अब जो हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड दिस आई विल टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए जितने भी टर्म्स हैं आई ट्राई टू कवर ऑल ऑफ देम। बाय देन you just go through the whole video, understand the term that I have given, I have explained and soak in all these things, ताकि आपको बहुत ज्यादा ना हो जाए करने के लिए। इसीलिए मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बाकी टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगी। इतना अगर आपने समझ लिया, अब आगे की टर्म्स आर क्वाइट सिंपल। ओके, सो as of now I think this is enough, so let's continue the other terms in the next video.